Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में 7 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले जो बच्चे हमारी वीडियो डेली बेसिस पे देखते हैं एंड स्टिल उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, उनके लिए अभी मैं बोलूँगा कि जल्दी से जाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, तब आगे बढ़ना। वीडियो को पॉज कर दो यहीं पे, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। मैं चाहता हूँ सभी बच्चे, क्योंकि हम जब देखते हैं डाटा को तो पता लगता है कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे हमें वीडियो तो हमारी देखते हैं लेकिन हमें सब्सक्राइब नहीं करा हुआ। तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, करेक्ट। और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करा करो, उन्हें बताओ अबाउट दिस सुपर चैनल जहाँ पर आप करंट अफेयर्स आपको एकदम टिप्स पे याद हो जाते हैं। सारे करंट अफेयर्स कराए जाते हैं, आपको रिवीजन होती है आपकी। आप देखेंगे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स होते हैं, वीकली बेसिस पे होते हैं, मंथली बेसिस पे होते हैं। फिर आप देखते हैं टॉपिक वाइज भी कराए जाते हैं। आपको एप्लीकेशन पे क्विज भी प्रोवाइड कराई जाती है जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करती है। और आजकल करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट बन गए हैं आपकी, किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला है नेम द इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर, जो कि अभी फ्लैग ऑफ किया गया मुंबई महाराष्ट्र से। इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज लाइनर। सबसे पहले तो इसका नाम बताओ क्या रहेगा। ये है कोस्टा सेरिना, ये इसका नाम रहेगा कोस्टा सेरिना, इंडिया के पहले इंटरनेशनल क्रूज लाइनर का। ये कहाँ पे फ्लैग ऑफ किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में इवेंट हुआ था, वहाँ पे फ्लैग ऑफ किया गया। किसके द्वारा इसको फ्लैग ऑफ किया गया? सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा इसको फ्लैग ऑफ किया गया, करेक्ट। किसके द्वारा बनाया गया है? इट हैज़ बिन डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या फिर पूछा जाए कि इसको कंस्ट्रक्ट किया गया किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो फिनकेन टिएरी ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहेगा। इनके द्वारा ये एक शिप बिल्डिंग कंपनी है, इनके द्वारा आपका पहला इंटरनेशनल क्रूज लाइनर जिसका नाम है कोस्टा सेरिना, इसको कंस्ट्रक्ट करा गया। फिर इसी के अंडर याद रखेंगे इंडिया का एक है मैरीटाइम अमृतकाल विजन। इसके अंडर यहाँ पे एम रहेगा कि 2047 तक हम ऐसे 25 ऑपरेशनल क्रूज टर्मिनल्स को सेटअप कर सकें जहाँ पे 5 मिलियन पैसेंजर्स यहाँ पर एनुअली ट्रैवल कर पाएंगे, इसका यूज ले पाएंगे। ठीक है, ताकि टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़े, और ऐसे 25 क्रूज टर्मिनल्स को सेटअप करने की बात की गई। तो कोस्टा सेरिना यहाँ पे नाम याद रखेंगे, इंडिया के पहले क्रूज लाइनर का नाम रहेगा, फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर का। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है कोस्टा सेरिना। सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया। कोस्टा सेरिना इसका नाम रहेगा और पहला इंटरनेशनल क्रूज लाइनर रहेगा। मुंबई महाराष्ट्र में इवेंट के दौरान इसको लॉन्च किया गया। एंड एम क्या है? ताकि क्रूजिंग एंड टूरिज्म को इंडिया में बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट,
सेकेंड है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको कितने साल तक एक्सटेंड कर दिया गया। सबसे पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब लॉन्च की गई थी, ये कोविड के टाइम पे 2020 में लॉन्च की गई थी, ताकि 5 किलोग्राम्स ऑफ फूड प्रोवाइड करा जा सके पर पर्सन पर मंथ। हर महीने हर आदमी को 5 किलोग्राम तक का फूड प्रोवाइड कराने की बात की गई, अनाज प्रोवाइड कराने की बात की गई। बिकॉज कोविड के टाइम पे हमने देखा जॉब चली गई थी, लॉकडाउन लग गया था, किसी के पास जॉब नहीं थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे अपने घर चलाने के लिए, खाना खाने के लिए। तो उस टाइम पर फूड इनसिक्योरिटी ना हो जाए, लोगों को हम देखें माल न्यूट्रिशन के शिकार ना हो जाएं, क्योंकि अगर खाना नहीं मिलेगा, पैसे नहीं होंगे तो खाना नहीं खा पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे तो शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी, कमजोरी आएगी, बीमारी हो जाएंगी उनको। तो उन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए, वो सिचुएशन ना आ सके, तो यहाँ पर ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम लॉन्च की गई थी सरकार के द्वारा, कि हर महीने 5 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन पर पर्सन हम प्रोवाइड करा सकें एट सब्सिडाइज रेट, जहाँ पे राइस, व्हीट या ग्रेन्स ये सब प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप यहाँ पे जाइए, अपना आधा वो राशन कार्ड दिखाइए और यहाँ पे आपको सब्सिडाइज रेट पे आपको फूड प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाता है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल तक एक्सटेंड कर दिया गया है, तो आने वाले 5 साल तक यहाँ पे स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया, फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ देख सकते हैं इस स्कीम को इनिशियली 2020 में कोविड-19 के टाइम पे लॉन्च किया गया था, एंड इट इज़ ऑपरेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस कंट्री ने अभी $44.7 मिलियन का फंड सेटअप किया है टू स्ट्रेंथन फूड सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इन उत्तराखंड एंड द हंगर प्रोजेक्ट। बेसिकली जो हंगर प्रोजेक्ट है, इसके लिए $44.7 मिलियन की फंडिंग प्रोवाइड कराई जा रही है, किस कंट्री के द्वारा, तो ये फंडिंग प्रोवाइड कराई जाएगी नॉर्वे के द्वारा टू इंडिया के प्रोजेक्ट जो कि है द हंगर प्रोजेक्ट। यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी के ऊपर बात की जाएगी, लोकल वैल्यू चेन, सप्लाई चेन्स को डेवलप करने की बात की जाएगी, जो स्मॉल स्केल फूड प्रोड्यूसर्स हैं उनको हेल्प करने की बात की जाएगी। करेक्ट, तो बेसिकली फूड सेक्टर को यहाँ पे ग्रो करने की बात की जाएगी, उसको हेल्प करने की, सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जाएगी विद दिस $44.7 मिलियन। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो फंडिंग प्रोवाइड की गई है, ये आने वाले 3 साल के लिए ये फंडिंग प्रोवाइड कराई गई है अंटिल सितंबर 2026। नॉर्वे के द्वारा ये फंडिंग यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है, और इस फंडिंग से हम देखेंगे काफ़ी अलग अलग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इंप्लीमेंट भी कराए जाएंगे। तो राइट ऑप्शन बनता है नॉर्वे का एड आया फॉर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, जो कि है $44.7 मिलियन का, और आने वाले 3 साल के लिए रहेगा, और किस लिए है, द हंगर प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट, किस चैनल ने अभी कोलैबोरेट किया मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के साथ टू सपोर्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव। तो कौन सा चैनल है, वो है कलर्स। कलर्स चैनल जो आपका वाईकॉम 18 का चैनल है एंड इंडियाज लीडिंग हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल कलर्स, इन्होंने कोलैबोरेट किया है किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ। और किस लिए इन्होंने कोलैबोरेट किया, ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव को बढ़ावा दिया जा सके, एंड जो गर्ल चाइल्ड अबेंडमेंट होता है, जो लड़कियों को छोड़ दिया जाता है, बच्चों को, राइट, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, तो उसके ऊपर यहाँ पे वर्क करने की बात की गई, लड़कियों को भी पढ़ाने की बात की गई, लड़कियों को भी आगे बढ़ने के लिए उनको, मतलब जैसे हम लड़कों को ट्रीट करते हैं सिमिलरली बिल्कुल वैसे यहाँ पर लड़कियों को भी सारे राइट्स उनके प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की गई। अब कलर्स कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि एक चैनल है, तो ये सोशल ड्रामा इनके द्वारा लॉन्च किया जाएगा एक, जो कि है डोरी के नाम से, जो कि एयर किया जाएगा 6 नवंबर 2023 से। तो इससे रेज की जाएगी अवेयरनेस अबाउट द गर्ल चाइल्ड अमेंडमेंट थ्रू देयर लेटेस्ट सोशल ड्रामा जो कि है डोरी। फिर इसी के साथ याद रखेंगे एक 24 आवर इमरजेंसी टोल फ्री चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1028। इसके बारे में भी लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये चैनल ने कोलैबोरेट किया, और ये चैनल का आपका हेल्पलाइन नंबर एड्स के दौरान ड्यूरिंग द शो ये सारा शोकेस किया जाएगा, ताकि जो लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको इसके बारे में अवेयर किया जा सके। ठीक है, तो 1098 हेल्पलाइन नंबर है। एंड डोरी यहाँ पर एक सोशल ड्रामा शो लेटेस्ट लॉन्च किया जाएगा कलर्स चैनल पे। और पूछा जाए तो किस चैनल ने कोलैबोरेट किया, तो कलर्स ने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ टू सपोर्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
ये पहली बार इनिशिएटिव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब लॉन्च किया गया था? 2015 में ये इनिशिएटिव आया था, ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो वीमेन एम्पावरमेंट है, उस पर काम किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी स्वीडन की एक कंपनी है साब। करेक्ट, स्वीडन की कंपनी साब एबी, ये वो पहली इंडिया की कंपनी बनी जिसकी जो पहली कंपनी बनी इन इंडिया जिसमें 100% एफडीआई अप्रूव किया गया है इन डिफेंस सेक्टर। आई रिपीट, स्वीडिश डिफेंस कंपनी साब एबी has become the first foreign company to get government of India's approval for 100% foreign direct investment in defense sector। और ये जो वैल्यू रहेगी इस एफडीआई की वो कितनी है? 500 करोड़ रुपए। इस इन्वेस्टमेंट से, इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से साब ये कंपनी क्या करेगी? ये रॉकेट लॉन्चर बनाएगी इंडिया में। और कौन से रॉकेट लॉन्चर? कार्ल गुस्ताफ M4, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर। इसकी मैन्युफैक्चरिंग ये इंडिया में करेगी और इसी के लिए यहाँ पे 100% एफडीआई अप्रूव किया गया है। तो मार्क करके चलेंगे, साब एबी कहाँ की कंपनी है? स्वीडन की कंपनी है। स्टॉकहोम स्वीडन में इनका हेडक्वार्टर रहेगा। माइकल जोहानसन चीफ एग्जीक्यूटिव एंड प्रेसिडेंट रहेंगे। करेक्ट, इनको यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूवल मिल गया फॉर 100% एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर। और यहाँ पे ये 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे ताकि कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, एसीसी ने अभी एएस राजीव जो कि एमडी एंड सीईओ हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, इनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया है फॉर द नेक्स्ट 6 months टिल सुपरन्यूएशन। राइट, आई रिपीट, एसीसी ने एक्सटेंड कर दिया टेन्योर ऑफ एएस राजीव जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र फॉर द नेक्स्ट 6 months। करेक्ट, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज याद रखेंगे, एसीसी ने एक्सटेंड कर दिया टेन्योर ऑफ एमवी राव जो कि है मातम वेंकटा राव। करेक्ट, ये एमडी एंड सीईओ हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, इनका टर्म एक्सटेंड कर दिया है कब तक? 31 जुलाई 2025 तक। दोनों चीज याद रखेंगे। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। फिर सेंटर ने अपॉइंट किया नोडल ऑफिसर्स टू एक्ट अगेंस्ट पायरेसी, फिल्म पायरेसी ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किए हैं 12 नोडल ऑफिसर्स को फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन टू कॉम्बैक्ट फिल्म पायरेसी। अब जैसे फिल्म पायरेसी कहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई मूवी लॉन्च की गई और उसको आप देखते हैं टेलीग्राम पे लॉन्च कर दिया, टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लेते हैं लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए, यूट्यूब पे डाल देते हैं। तो ऐसे केसेस में जो फिल्म पायरेसी होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एंड जो फिल्म के राइट्स हैं उनके ऑनर्स के पास रहें, उन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अभी 12 नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं सेंटर के द्वारा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म क्या आ जाता है? कितने नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए? 12 नोडल ऑफिसर्स यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं। फिर आगे बढ़ने से पहले याद रखेंगे, डाबर इंडिया ने अभी अपॉइंट किया है फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि 24 चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के, सुशील चंद्रा। इनको अपॉइंट किया गया एज द नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ डाबर इंडिया लिमिटेड। ठीक है, एक चीज। फिर आ जाते हैं अभी रिसेंटली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट आईआईटी मुंबई, करेक्ट, या फिर आईआईटी बॉम्बे कह देते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि आईआईटी बॉम्बे में है, इनके द्वारा एक टेक्नोलॉजी सेटअप की गई, एक टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश की गई जो कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगी कार्बन मोनोऑक्साइड में। आई रिपीट, अभी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है आईआईटी बॉम्बे में जिन्होंने एक टेक्नोलॉजी बनाई है जो कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगी किसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड में। करेक्ट, डायरेक्टली इसको याद रखेंगे। एंड इसका काफ़ी ज़्यादा यूज केसेस हमें देखने को मिलेगा स्टील सेक्टर में। स्टील सेक्टर में इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट है स्पीयर कॉर्प्स, इन्होंने टेस्ट फायर किया न्यू जनरेशन रॉकेट एंड टरेट एम्यूनेशन का फ्रॉम रुद्रा। रुद्रा क्या है? रुद्रा आपका एक हेलीकॉप्टर का नाम है। करेक्ट, ये अटैक हेलीकॉप्टर है आपका।
रुद्रा, इसके द्वारा अभी टेस्ट किया गया न्यू जनरेशन ऑफ रॉकेट एंड टैरेट एमिनेशन को। ये जो स्पीयर कॉर्प्स की बात कर रहे हैं, याद रखेंगे ये एविएशन यूनिट है ऑफ द इंडियन आर्मी, एंड रुद्रा भी आपका इंडियन आर्मी की एविएशन यूनिट का ही हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर, एंड इनके द्वारा ही अभी न्यू जनरेशन रॉकेट एंड टैरेट एमिनेशन को टेस्ट फायर करा गया। ठीक है, चलिए। और जो ये रुद्रा हेलीकॉप्टर्स हैं, इसको डिजाइन एंड डेवलप किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। मूविंग ऑन टू एनवायरनमेंट, अभी एक नई स्पीशीज डिस्कवर की गई है ऑफ गेको। इसका नाम रखा गया है नेमास्पिस राशिदी। करेक्ट, वेस्टर्न घाट में तमिलनाडु में ये डिस्कवर की गई है, इंपॉर्टेंट। एंड अ टीम ऑफ रिसर्चर्स जो कि अमित सैयद, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड रिसर्च सोसाइटी, इनके द्वारा डिस्कवर की गई थी। एंड अमित सैयद के फादर के जो थे प्रोफेसर राशिद सैयद, उनके बिहाफ पे इसका नाम रखा गया है, जो कि है नेमेस्पिस राशिदी। ठीक है, कहाँ पे डिस्कवर की गई? तमिलनाडु में, वेस्टर्न घाट्स में इसको डिस्कवर करा गया था, न्यू स्पीशीज ऑफ गेको। नेक्स्ट आ जाता है फिर वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। कब ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे? हर साल 5 नवंबर को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं। और इस बार की जो थीम रहेगी वो क्या है? फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर। फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर, ये थीम रहेगी आपकी वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे की। ठीक है, मार्क करके चलेंगे इसको। और पहली बार ये डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 2016 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। फिर आ जाता है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। 6 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। 6 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज जो कि वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट का होता है ऑन आर एनवायरनमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, अब कहीं पे बॉम्ब फट रहा है तो उससे पॉल्यूशन तो क्रिएट हो रही है, राइट। अगर कहीं पे न्यूक्लियर बॉम्ब फटा, जैसे हिरोशिमा नागासाकी पे हुआ था, तो वहाँ का एरिया कितना ज़्यादा एकदम रहने लायक नहीं रहा था, प्लस पॉल्यूशन, प्लस उसका एनवायरनमेंट पे इफेक्ट, और ऊपर से जो रेडिएशन फैला था वो अलग। ठीक है, तो 6 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। और इस बार 2023 में कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया था? ये 22वां एडिशन था आपका इस डे का। ठीक, चलिए। और पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया? 2002 में। नेक्स्ट आ जाता है फिर स्टेट न्यूज़। अभी ओडिशा गवर्नमेंट ने 3 MOU साइन किए हैं। एक साइन किया है IESA के साथ, सिनॉप्सिस एंड ESC। अगर बात करें IESA, तो ओडिशा गवर्नमेंट ने इनके साथ MOU साइन किया ताकि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को सेटअप किया जा सके ओडिशा में। करेक्ट, IESA क्या है? इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन। सिनॉप्सिस के साथ यहाँ पे MOU साइन किया ताकि जो वर्कफोर्स है उसको यहाँ पे स्किल बनाया जा सके, करेक्ट, लोगों को स्किल्स प्रोवाइड की जा सके, वर्कफोर्स डेवलपमेंट की बात की गई, एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन डोमेन्स एंड इंटर्नशिप्स की यहाँ इंटर्नशिप्स कराने की बात की गई, प्लेसमेंट्स, जॉब्स प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की गई टू द स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस। और तीसरा आ जाता है ESC, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। इनके साथ यहाँ पे टाइप किया गया फॉर IT एनेबल्ड सर्विसेज। करेक्ट, यहाँ पे बिल्टअप स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा, ऑफिसेज प्रोवाइड किए जाएंगे ओडिशा में, ताकि जो सेमीकंडक्टर्स की कंपनी है जो यहाँ पे अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगी, जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगी, उनके लिए ऑफिस प्रोवाइड कराने की बात की गई। तो ये 3 MOU साइन किए गए हैं इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। इसी के साथ साथ एक और याद रखेंगे, ओडिशा फॉर सिलिकॉन 2023। ओडिशा फॉर सिलिकॉन 2023 ये एक प्रोग्राम अभी कराया गया था ओडिशा के द्वारा, एंड जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, इसका मेन एम है कि यूथ को यहाँ पे एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना, एंड ओडिशा में जो आपका सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम है ना, उसको बढ़ावा देना। जब सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम अपने आप बनी जाएगा तो जॉब अपॉर्चुनिटी जो यूथ के लिए हैं वो तो अपने आप ही आ जाएंगी, राइट। तो ओडिशा फॉर सिलिकॉन ये क्या था? एक सेमीकंडक्टर इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को सेटअप करना इन ओडिशा। करेक्ट, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फिर केरला को ऑनर किया गया विद द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से। किस स्टेट को ऑनर किया गया ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड से? तो वो रहेंगी केरला रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को। करेक्ट, एंड सोर एक्सक्लूजन्स अहमदाबाद गुजरात को यहाँ पर किस कैटेगरी में सम्मानित किया गया? बेस्ट फॉर मीनिंगफुल कनेक्शंस
कैटेगरी। ठीक है, बेस्ट फॉर मीनिंगफुल कनेक्शंस कैटेगरी के अंडर इनको सोर एक्सक्लूजन्स अहमदाबाद गुजरात को सम्मानित किया गया। एंड अगर पूछा जाए किसको ऑनर किया गया ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड से, केरला को। केरला काफ़ी टूरिज्म के लिए मशहूर है, दूर दूर से लोग यहाँ पे आपके एलपीज को, बैक वाटर्स को देखने आते हैं, करेक्ट। तो इसलिए याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक डेस्टिनेशन बन जाती है केरला फॉर टूरिज्म, राइट, मार्क करके चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का लास्ट जो रह गया वो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम ने अभी इनॉग्रेट किया पार्वती भवन एंड नव दुर्गा पाथ स्काई वॉक प्रोजेक्ट, कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। इस स्काई वॉक की बात करें, ये एक पेडेस्ट्रियन फ्लाईओवर है दैट इज बिल्ट एंड एलिवेशन ऑफ 20 फुट एंड इसको 15 करोड़, 15.5 करोड़ के करीब इसकी लागत आई थी बनाने के लिए। पार्वती भवन की बात करें, ये लिंक्ड है आपके स्काई वॉक से एंड ये इंश्योर करता है पिलग्रिम्स प्रोसीड डायरेक्टली टू द श्राइन आफ्टर डिपॉजिटिंग देयर लगेज। इट हैज 1500 लॉकर्स दैट कैटर्स 10,000 to 15,000 पिलग्रिम्स एवरी डे। तो ये आपके दो पार्वती भवन एंड नव दुर्गा स्काई वॉक प्रोजेक्ट, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा इनॉग्रेट करे गए थे। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर रिवीजन पर। सरबंदरा सोनोवाल जी, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज लाइनर कोस्टा सेरिना मुंबई में। देन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक्सटेंड कर दिया 2028 तक। नॉर्वे फंड करेगा $44.7 मिलियन का सपोर्ट टू इंडियाज हंगर प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। फिर कलर ने कोलैबोरेट किया मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ टू सपोर्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। स्वदेशी फर्म साम एबी, ये वो इंडिया की पहली 100% एफडीआई फर्म बन गई है इन डिफेंस सेक्टर एंड गुस्ताव लॉन्चर्स को ये डेवलप करेंगे इंडिया में। ईसीसी एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ एएस राजीव, जो कि एमडी एंड सीईओ हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, एंड मातम वेंकटा राव, जो कि एमडी एंड सीईओ हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। देन सेंटर ने अपॉइंट किया नोडल ऑफिसर्स को टू एक्ट अगेंस्ट फिल्म पायरेसी ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। डाबर इंडिया ने अपॉइंट किया फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा को एज द न्यू एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नई टेक्नोलॉजी अभी आई है जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट आईआईटी बॉम्बे ने डेवलप की, जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट करना, एंड ये स्टील सेक्टर में इसके काफ़ी एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, स्पीयर कॉप्स, इन्होंने टेस्ट फायर किया न्यू जनरेशन रॉकेट एंड टरेट एम्यूनेशन फ्रॉम रुद्रा, जो कि एक अटैक हेलीकॉप्टर है। देन नेमेसिस राशिदी, ये नई स्पीशीज का नाम है ऑफ गैको, जो कि डिस्कवर की गई इन वेस्टर्न घाट इन तमिलनाडु। देन वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स 6 नवंबर को। ओडिशा गवर्नमेंट ने 3 MOU साइन किए 3 एंटिटीज़ के साथ, ताकि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड इकोसिस्टम सेटअप किया जा सके एंड जॉब्स प्रोवाइड कराई जा सके इन दिस सेक्टर टू द यूथ ऑफ ओडिशा। फिर ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डे कब ऑब्जर्व किया, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड्स थे, जहाँ पे केरला के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन एंड सोर एक्सक्लूजन्स ऑफ अहमदाबाद को यहाँ पे सम्मानित किया गया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया पार्वती भवन एंड नव दुर्गा पाथ स्काई वॉक प्रोजेक्ट, कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके कुछ रिविजन करंट अफेयर्स पे फॉर प्रीवियस डेज। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे हम 20 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं हर साल, करेक्ट। हर 5 साल में इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। एक चीज़ याद रखेंगे, हर साल ऑब्जर्व नहीं करते हैं, एंड पहली बार इस ईयर को 2015 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया टू लॉन्च यूथ फोकस्ड फैशन रिटेल स्टोर यूस्टा। ये जो यूस्टा नाम का फैशन रिटेल स्टोर लॉन्च किया गया है, यूथ फोकस्ड रहेगा, जैसा नाम है यूस्टा, तो यूथ फोकस्ड रहेगा, रिटेल स्टोर, फैशन रिटेल स्टोर रहेगा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये रिलायंस के द्वारा लॉन्च किया गया है, करेक्ट, मार्क करेंगे। और कहाँ पर होगा इनका पहला स्टोर? हैदराबाद की ये सरत सिटी मॉल में इनका ये पहला मॉल रहेगा। नेक्स्ट, सीसीआई ने सिक्योर की मेंबरशिप इन द इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क स्टीयरिंग ग्रुप कितने साल के लिए? तो यहाँ पर अभी सीसीआई ने सिक्योर करी मेंबरशिप इन द इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क स्टीयरिंग ग्रुप कितने साल के लिए? फॉर 2 years, ठीक है, 2 साल के लिए। अगर आईसीएन ग्रुप की बात करें, ये जो सीसीआई ने यहाँ पे सिक्योर करी है ना मेंबरशिप इन दिस आईसीएन स्टीयरिंग ग्रुप, ये की है ड्यूरिंग द 22nd एडिशन ऑफ द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ आईसीएन, जो कि स्पेनिश नेशनल मार्केट्स एंड कंपटीशन के द्वारा होस्ट करी गई थी। बार्सिलोना स्पेन में होस्ट की गई थी। 18 से 20 अक्टूबर तक इसको होस्ट
किया गया था, ठीक है। एंड ऐसा पहली बार हुआ है, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट CCI जो कि है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ ICN's एपेक्स बॉडी, और कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए। आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज। वर्ल्ड ड्वार्फिज्म डे, जब हाइट में आप छोटे रह जाते हैं, ये एक जेनेटिक म्यूटेशन होती है इन द आर्म्स एंड लेग्स, तो इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए एंड जो लोग इससे जूझ रहे हैं उनको हेल्प करने के लिए, उनको उनके राइट्स के बारे में अवेयर कराने के लिए, एंड लोग उनका मजाक ना उड़ाएं, उनकी हेल्प करें, बल्कि करेक्ट उनको सपोर्ट करें इस जर्नी में, इसलिए ये डे ऑब्जर्व करा जाता है। एंड इसी को इंटरनेशनल डॉर्फिज्म अवेयरनेस डे भी एक ऑब्जर्व किया गया था, जिसको हम द लिटिल पीपल ऑफ अमेरिका डे के नाम से भी जानते हैं। पहली बार इसको 2012 में ऑब्जर्व किया गया था, और हर साल हम 25 अक्टूबर को इसको ऑब्जर्व करते हैं। मूविंग ऑन, फिर आ जाता है वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज। वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज ऑब्जर्व किया जाता है 27 अक्टूबर को, ताकि जो हमारे हिस्ट्री है ऑफ ऑडियो विजुअल, जिस तरीके के हमारे इक्विपमेंट्स होते थे, हम उनको प्रिजर्व कर सकें, उसका आर्काइव बना सकें, ताकि उससे जो हमारे आज डेवलपमेंट हम देखने को मिल रहा है, बिकॉज स्टार्टिंग वहीं से हुई थी, करेक्ट, तो उनको सेफ गार्ड करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी एक थीम भी है, योर विंडो टू द वर्ल्ड। पहली बार ये डे कब ऑब्जर्व किया गया था, तो पहली बार ये डे ऑब्जर्व किया गया था 2006 में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इन्फेंट्री डे की। कब ऑब्जर्व किया जाता है, 27 अक्टूबर को हम इन्फेंट्री डे ऑब्जर्व करते हैं। ये ऑब्जर्व किया जाता है बाय इंडियन आर्मी टू कमेमोरेट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द इन्फेंट्री, जो कि लार्जेस्ट फाइटिंग आर्म है इंडियन आर्मी का, इसलिए हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। और इस साल 2023 में 77th इन्फेंट्री डे हमने ऑब्जर्व करा था। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था ये इवेंट, 1947 में ऑब्जर्व किया गया था, करेक्ट। नेम द कंपनी दैट रिसेंटली अनवेल्ड विक्रम-1, जो कि एक ऑर्बिटल स्पेस लॉन्च व्हीकल है फ्रॉम GMR एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क इन साउथ हैदराबाद, तेलंगाना। तो उस कंपनी का क्या नाम है जिन्होंने विक्रम-1 एक ऑर्बिटल स्पेस लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया फ्रॉम GMR एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क इन साउथ हैदराबाद, तेलंगाना, वो है स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये जो विक्रम-1 रॉकेट है ना, इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग 480 kgs ऑफ के पेलोड इनटू लो अर्थ ऑर्बिट, लियो, जो कि 500 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और जो ये विक्रम-1 आपका ऑर्बिटल स्पेस लॉन्च व्हीकल है, ये याद रखेंगे, रॉकेट जो ये रहेगा विक्रम-1, इससे ये आपका ऑल कार्बन फाइबर है। कार्बन फाइबर बहुत मजबूत होता है और बहुत लाइट होता है, करेक्ट। और जो यहाँ पर आपको याद रखेंगे 3D प्रिंटेड इंजन रहेगा इसका, 3D प्रिंटेड इंजन रहेगा। और अगर बात करूं मैं, पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां पर था, वो आपका बेंगलोर, कर्नाटका में। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, S&P ग्लोबल के द्वारा भी एक डाटा रिलीज किया गया, जिसमें बताया ये है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स डाटा, ठीक है। S&P ग्लोबल के द्वारा इसको रिलीज किया गया, और इस परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स डाटा के हिसाब से एक डाटा रिलीज किया गया, जिसमें बताया कि इंडिया एशिया का, या फिर इंडिया एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी बाय 2030, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। टॉप पर कौन रहेगा एशिया में, चाइना, फिर आ जाएगा हमारा इंडिया, राइट। और ये सरपास किसको करेंगे, हम सरपास कर देंगे जापान को, टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया बाय 2030। हम एशिया की बात कर रहे हैं, एशिया कॉन्टिनेंट की। अगर ग्लोबली देखें तो ग्लोबली USA टॉप पर है, फिर सेकेंड पे चाइना आ जाता है, राइट। और हम बोला जा रहा है कि 2030 तक हम इंडिया थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा एशिया में, ठीक है। और जो इसकी GDP होगी ऑलमोस्ट $7.3 ट्रिलियन GDP होगी बाय 2030। और इसी के साथ साथ इस परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में एक और फॉरकास्ट आया कि जो इंडिया की GDP ग्रो करेगी नेक्स्ट ईयर, वो 6.2 से 6.3% के बीच में रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर जो बाइडेन US के प्रेसिडेंट, इनके द्वारा 2 इंडो अमेरिकन साइंटिस्ट को अभी नेशनल मेडल से सम्मानित किया गया। एक है सुब्रा सुरेश और दूसरा है अशोक गडगिल। सुब्रा सुरेश की बात करें, ये MIT से बिलोंग करते हैं एंड इनको नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया। वहीं पे अगर अशोक गडगिल की बात करें, ही इज़ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड इनको अभी नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से सम्मानित किया गया। दोनों नाम याद रखने हैं और दोनों मेडल के नाम, कि सुब्रा सुरेश को तो नेशनल मेडल ऑफ साइंस SSS से याद रखेंगे एंड अशोक गडगिल जी को यहाँ पे नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से सम्मानित किया गया। तो साइंस वाला किनको दिया गया है, वो है सुब्रा सुरेश को, क्योंकि SSS से याद रखना है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट बनता है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट अ विलेज ऑफ गुजरात,
that is Dhordo village, right? This is a village in Gujarat that is included in the United Nations World Tourism Organization's best tourism village list. I repeat, Dhordo village that is in the Kutch district, of Gujarat has been recently named in India's best tourism village, right? And this is the third edition of best tourism village list that was recently released by UNWTO, that is United Nations World Tourism Organization, correct? Then apart from this, remember, if we are talking about Madhya Pradesh, Mandla village has been picked for the best tourism village upgrade program. I repeat, if we are talking about the best tourism village, it was Gujarat's Dhordo village, and if we are talking about the best tourism village upgrade program, it is the Mandla village. That is the Mandla village of Madhya Pradesh. Then if we talk about this village, this is known for hosting the annual Ran Utsav, that is a vibrant cultural festival showcasing the region's traditional art, music, craft, spanning almost over 5 lakh square meters. Correct? So remember the name, that is Dhordo village in Gujarat is the best tourism village. And if we are talking about the best tourism village redevelopment, or if we are saying that best tourism village for upgrade program, it will be Mandla of Madhya Pradesh. Next, remember, Udhampur military station gets the best green military station award. Direct question will be asked that which is the railway station that recently got, or which is the military station that recently got the best green military station award. It is Udhampur military station. This Udhampur military station is located in the Union Territory of Jammu and Kashmir, correct? And it has bagged the best green military station award. This award was presented to this military station for the efforts and the work they did, and towards the basically for the Indian Army to strive for excellence, right? So basically all the development work they did there, for that recognition they were honored with this best green military station award. During this award ceremony, Dehradun military station of Uttarakhand was also acknowledged for securing the title of the second best. Bikaner military station of Rajasthan was honored with the best transformative station trophy, and 671 Army Aviation Squadron Reconnaissance and Observation was honored with the COAS Flight Safety Trophy for the year 22-23. So these are some awards. First is your best green military station award. Top is your Udhampur. On second is your Dehradun military station. Then best transformative station award goes to Bikaner military station. So these are some awards that you need to remember. नेक्स्ट आ जाते हैं IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, इनके द्वारा प्रोजेक्ट किया गया ग्लोबल ग्रोथ रेट टू व्हाट परसेंट इन 2024। तो 2024 में जो ग्लोबल ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट की गई है वो है 2.9% की। वहीं पे 2023 की जो ग्लोबल ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट की जा रही है वो है 3% की। यहीं पे अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो इन्फ्लेशन 2023 में कितनी एक्सपेक्टेड है 6.9% की, और 2024 में इन्फ्लेशन है 5.8% की, राइट? इवन बोला जाने आने वाले टाइम में हम देखेंगे देयर इज अ हाई चांस कि रिसेशन भी आ सकता है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन। तो राइट ऑप्शन बनता है यहाँ पर ऑप्शन 1। IMF की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, एंड इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? 1944 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो IMF ने प्रोजेक्ट किया ग्लोबल ग्रोथ रेट टू स्लो टू 2.9% इन 2024 एमिड इकोनॉमिक स्लोडाउन। रिवीजन के बाद फ्रेंड्स अब आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। पहला, किस इंस्टीट्यूशन ने रेज किया मोर देन 1000 करोड़ रुपीस वाया सोशल बॉन्ड? दूसरा, Shiyan-6 जो भी एंटर किया विच एंटर्ड द इंडियन ओशन इज द रिसर्च वेसल ऑफ विच कंट्री? और तीसरा, सुदीप्ति हाजेला, दिव्या कीर्ति सिंह, हृदय छेड़ा एंड अनुष अग्रवाल, ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो दोस्तों ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए। मैं देख रहा हूँ बहुत कम बच्चे यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट चाहिए मुझे, एंड मैं चाहता हूँ सबसे ज़्यादा आज की वीडियो पे कमेंट आए। जो भी बच्चे हमारी वीडियो देख रहा है हर बच्चा यहाँ पे कमेंट करे इन तीनों क्वेश्चंस का, करेक्ट? लेट्स सी।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.